So, dear sisters, प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि हम लोग इस समय we come here to bless one another. I will share some time, and we all also share what God is teaching you in your own spiritual lives. So, Sister Sonali is on the line. Yes, brother. Okay. So, looking at First Peter chapter 1. हम जाएंगे पहला पत्रस पहला अध्याय में. So the Apostle Peter is writing to all the believers who are outside the country of Israel. और ये प्रेरित जो है पत्रस जो है वो सभी विश्वासियों को लिख रहे हैं जो इजराइल से बाहर हैं. Verse 1 says, the Apostle Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who reside as aliens, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia, and who are chosen. पहला वचन, पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलतिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तीतर बीतर होकर रहते हैं. So the Apostle Peter is writing to so many believers who are from non-Jewish backgrounds. और ये प्रेरित पत्रस जो है वो उनसे बात कर रहे हैं जो गैर यहूदी है और विश्वासी है. And most of these places that we read are in the country which is now called Turkey. और ये जो यहाँ पर ये जो नाम हम पढ़ रहे हैं अभी के टाइम पर ये जो स्थान है वो टर्की में है. So all these believers were living, come from heathen backgrounds where they were worshipping idols. Now they are turned to the living God. और ये सब जो मूर्तियों की पूजा करते थे पर अब वो जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं. And the Apostle Peter says that they are living like aliens, like foreigners among all their people. और पत्रस यहाँ पर कह रहे हैं कि वो एक अजनबियों की तरह उनके देश में रहते हैं. So all of us here, God has called us, and we also have to live like aliens, like strangers in this world. This world is not our home. We are like strangers and pilgrims. और हमें भी प्रभु ने बुलाया है. इस संसार में हम जब रहते हैं तो हमें बिल्कुल एक परदेशी के समान रहना है. हमें बिल्कुल अजनबी के समान रहना है. ये संसार हमारा नहीं है. Most of the people around us, our relatives and friends, cannot understand us because they don't have any interest for God. और कई बार हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त ये समझ नहीं पाते क्योंकि उनको प्रभु में कोई दिलचस्पी नहीं है. And the wonderful thing is that God has chosen you and me. पर ये तो अद्भुत बात है कि प्रभु ने आपको और मुझे चुना है. From the foundation of the world, God has chosen that you should follow the Lord. और जब इस संसार की जब नींव डली थी तब से ही परमेश्वर ने हमें चुन रखा है. And that is a wonderful thing to think about, that we have not chosen God, but God has chosen us. और ये बहुत ही अच्छा विषय है सोचने के लिए कि हमने प्रभु को नहीं चुना है, प्रभु ने हमें चुना है. And that God has given us the Holy Spirit to sanctify us and to make us holy. और फिर पवित्र आत्मा दिया गया है प्रभु की ओर से ताकि हम पवित्र किए जाएं. That is written in verse 2. दूसरे वचन में लिखा है. And that it says that and you may obey Jesus Christ and be sprinkled with his blood. और आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं. So the Lord wants us to obey, Father wants us to obey the commands of Jesus Christ. यीशु मसीह चाहते हैं, पिता चाहता है कि हम जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है हम उसको माने. By the help of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा. And the Holy Spirit has come to make us holy. और पवित्र आत्मा हमें पवित्र करने के लिए आया है. Every day he wants to change you and me in the way we behave, the way we talk, the way we think, and the way we do so many things. और पवित्र आत्मा हमें हर एक क्षेत्र में हमारे जीवन के, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा चाल चलन, बोलना, उठना बैठना, जो कुछ जिस तरीके का हम जीवन जीते हैं उससे बदलने के लिए आया है. And then again, verse 3, it says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus from the dead. और तीसरा वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है.
Because Jesus rose again from the dead, he went to heaven and sent the Holy Spirit into our hearts. यीशु मसीह हमारे लिए मरे, वो जी उठे और अभी स्वर्ग में जाकर उन्हें पवित्र आत्मा हमें दिया है। That is why we will not get discouraged, but there will always be a hope in our heart in every situation. इसलिए हम कभी निराश नहीं होते हैं, हमारे मन के अंदर एक आशा रहती है It's a living hope, it says. और ये जीवित आशा है। So that as we sang in the song, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में एक आशा की द्वार खुल जाता है. There is a door of hope opens to us in every problem that we face. और जितनी भी दिक्कतों का हम सामना करते हैं, पर एक आशा का द्वार हमें जरूर नजर आता है। And then the purpose is that we can involve verse 4 to obtain an inheritance which is unperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you. और चौथा वचन, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। So God has given you and me an inheritance. और प्रभु ने हमें एक मिराज दी है। Maybe your father and mother has not left you inheritance, but because you are a child of God, you have an inheritance from God. और हो सकता है कि आपके माता पिता ने आपके लिए कुछ मिराज ना रख छोड़ी हो, पर जो पिता जो स्वर्ग में है हमारे लिए मिराज रखी है उन्होंने। And this inheritance cannot be destroyed. It's not like gold and silver or houses or lands. They cannot be destroyed. Nobody can take it away. और ये मिराज जो है वो नष्ट होने की नहीं है, क्योंकि सोना और चांदी और घर तो नष्ट हो जाएंगे, पर ये जो मिराज है ये अनंत है। And in verse 4 it says it's reserved in heaven for you. और यहाँ पर चौथे वचन में लिखा है कि ये सुरक्षित है स्वर्ग में। So God has given us a tremendous inheritance, something that is eternal, and it is reserved for you. Nobody can take it away. और ये अद्भुत मिराज हमें मिली है जो अनंत है और कोई भी इसे छीन नहीं ले सकता है। And all these things are also, we are also protected by the power of God. और ये और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा सुरक्षित भी की गई है। And that through faith, when we believe that, we are going to get a salvation. और एक सच्चे विश्वास के साथ कि जब ये हम विश्वास करें कि हाँ हमें उद्धार मिलेगा। This letter is written by the Apostle Peter. और ये जो है प्रेरित पतरस के द्वारा लिखा गया है। You know, the Apostle Peter was a very poor fisherman. और हम जानते हैं कि बहुत ही गरीब मछुआरे थे प्रेरित पतरस। But he was so filled with the Holy Spirit that he could write these beautiful things to all of us. और वो उनको बहुत ही अद्भुत रूप से पवित्र आत्मा से भरे गए थे ताकि वे खूबसूरत बातों को लिख सके। When God has done so much for us, then we will definitely follow him and probably live for Jesus Christ. और क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हमें निश्चित रूप से प्रभु का पीछा करना ही चाहिए। That is why we can really rejoice in God. और यही सही मायना होगा परमेश्वर में आनंद मनाने का। Verse 6 says, in this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials. और छठा वचन, और इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। Yeah, because God has done so much for us, we can greatly rejoice when we think how much the Lord loved us and gave us such an inheritance and such a privilege to be among the saints. We greatly rejoice when we think about that. और जब हम इन बारों में सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें कितना अद्भुत जो जीवन दिया है, कितनी बातें दी हैं, कितनी आशीषें दी हैं, तब हम आनंद मनाते हैं। And the Lord says, even though we have got so many trials, we get so distressed by trials while we live in this earth. यद्यपि हमारे जीवन में बहुत सारे परीक्षण आते हैं, प्रलोभन आते हैं, दिक्कतें आती है, तो हम निराश हो जाते हैं, पर फिर भी हमें आनंद मनाना है। There are so many distresses that we face in our home, in our workplace, among our relatives and friends. और बहुत सारी बातों को हम सामना करते हैं हमारे काम के क्षेत्र में, हमारे घरों में, हमारे दोस्तों के बीच में, हमारे रिश्तेदारों के बीच में। When we follow the Lord, we will face a lot of problems and troubles from all the people around us. जब हम प्रभु का पीछा करते हैं तो बहुत सारी दुख मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ता है लोगों के बीच में भी। But in the middle of all these things, we have to always look to God, how much God loves us and cares for us. और इन सब बातों के बीच में हमें प्रभु की ओर देखना है कि कितना वो हमसे प्रेम करता है, कितनी रक्षा वो हमारी करता है। And the Lord also allows all these trials and problems to come across our life. और प्रभु चाहता है कि ये सब बातें हमारे जीवन में आए।
We are not like the unbelievers that they want earthly things and they get earthly things, but many times the Lord does not give us these things. हम वो अविश्वासियों की तरह नहीं है, क्योंकि वो तो लोग चाहते हैं कि उनको संसार की चीजें मिल जाएं, उनको संसार की चीजें चाहिए, पर प्रभु से हम मांग सकते हैं. But the Lord says, I am sending you these trials just to know whether you are true to me or not. I want to see your proof that you are a child of God or not. पर प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें अनुमति दी है इन सब बातों के लिए आने के लिए तुम्हारे जीवन में, क्योंकि मैं चाहता हूँ देखना कि तुम्हारा विश्वास सच्चा है कि नहीं. Because your life is like a spirit, like a more precious than gold. क्योंकि तुम्हारा जो जीवन है वो सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है. And this gold has to go through fire, so you also have to go through fire. और क्योंकि जैसे सोने को आग में तपना पड़ता है, वैसे तुम्हें भी तापना पड़ेगा. And when we live for the Lord and take a decision to please the Lord, then we come out through the fire all the more better. All the wrong things in our life, all the impurities in our life are taken away. और जब हम निर्णय लेते हैं कि हाँ, मुझे तो प्रभु का पीछा करना है, मुझे संसार के पीछे नहीं जाना है, तब वो होता है कि आग में ताया जाना, तब हम उस आग में से निकलकर एक अच्छे विश्वासी बनेंगे. When we go through the trials and problems, we see all the rubbish in our life, all the anger and the irritation, anxiety, everything coming up, and we commit this to the Lord, and the Lord is able to take away all these things. और जब हम प्रभु का पीछा करेंगे, तब हमारे अंदर की जो गंदगियों को हम देखेंगे, जितनी भी चिंताएं, दुख, मुसीबतें और जितने भी पाप हमारे जीवन में है, वो सब देखेंगे और प्रभु के सामने हम दे देंगे. And we confess our sins to the Lord and ask God for help, and then the Lord gives us help. और फिर हम अपने पापों को प्रभु के आगे मानेंगे और प्रभु अपनी सहायता हमें देंगे. So all of us have to go through trials every day of our life. और हम में से हर एक जन को दुख मुसीबतों से होकर जाना ही है हमारे जीवन में. If you follow the Lord, you'll always face trials everywhere. और यदि आप प्रभु का पीछा करते हैं, तो आपको हर एक जगह परीक्षण मिलेगा. But our vision, our aim, and our thinking, our thoughts should be on the Lord and not on the things of this world. पर हमारा उद्देश्य, हमारी सोच जो है, वो सिर्फ प्रभु की ओर होनी चाहिए, संसार के पीछे नहीं. And verse 8 says, even though now you see him and you love him, and even though you now do not see him but believe in him, and you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory. और 8वां वचन कहता है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास भी करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो कि जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है. Hallelujah. So the Lord says that, see, because we love the Lord and look at the Lord, we still believe in him and we obey him. क्योंकि हम प्रभु की ओर देखते हैं, उसे विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञा को भी मानते हैं. And we don't want to compromise with this world and don't want to sin because we love the Lord. हम इस संसार से, इस पाप से समझौता नहीं करते, क्योंकि हम प्रभु से प्रेम रखते हैं. And the great thing is that in the middle of all our troubles and problems, we still rejoice in God with such a tremendous amount of joy. और ये अद्भुत आनंद तो इस बात का है कि इन सब बातों के बीच में भी हम प्रभु के आनंद को खोते नहीं हैं. It is a nice thing to rejoice in God when we come for the meetings. और ये बहुत ही अच्छा है आनंद मनाना जब हम सभा में आते हैं. All of us together are worshiping and praising the Lord. सब जन जो है प्रभु की आराधना और स्तुति करते हुए पाए जाएंगे. But the true worship, God wants us from our mouths to come in all our trials and problems in life, because we see that God is in control of our life. और एक सच्ची आराधना जो ये होती है कि हमारे मुंह से एक सच्ची आराधना जब निकलती, जब हम दुख मुसीबतें में होकर भी उसका धन्यवाद करते हैं. So many people, they only praise God in the meetings, but when the trials come, they keep on grumbling and complaining, and they sit saying all the wrong things to other people. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सभा में तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पर जैसे ही दुख मुसीबतें तकलीफ उनके जीवन में आती है, तब उनका धन्यवाद नहीं रहता है, फिर वो कुड़कुड़ाते हैं. But God gives a lot of trainings, more and more trials, so that we can graduate and pass the exam, and in the trials also give thanks to God. पर हम प्रभु चाहते हैं कि हमारा परीक्षण होता रहे, ताकि हम परिपक्व बन जाएं, ताकि ये जो मुसीबतें हैं हम उससे लड़ने की ताकत रखें. The true praise and worship comes in our life when we are faced with all sorts of difficulties. और सच्ची जो आराधना है वो तभी होती है हमारे जीवन में जब हम बहुत सारी बातों को अपने जीवन में सामना करते हैं. So we have to look to the Lord, and the Holy Spirit will show us the great glory of God and the blessing of God over our life.
उस समय प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। पवित्र आत्मा हमें बताएंगे कि परमेश्वर की महिमा में और कैसे बढ़ते जाना है। And then we'll be, instead of seeing all the troubles and the people who are creating the problems, we see the Lord over our lives. और इन सब मुसीबतों के बजाय हम ये देखने लगेंगे कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में है। And that is why it says we rejoice with joy unspeakable. और यहाँ इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए आनंद मनाओ, Because we are living for the Lord and the Lord is guiding our life and guarding our life. क्योंकि परमेश्वर जो है, हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं और हमें हमारे जीवन की रक्षा प्रभु की ओर से हो रही है। The Lord will take us through the trials, but we have to go through the trials. प्रभु जो है अनुमति दे रहे हैं हमारे जीवन में ऐसी तकलीफें आने का, पर हमें होकर गुजरना है इन सबसे। Many times we pray, Lord, please take away this problem. पर हम कई बार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस दिक्कत को मेरे जीवन से ले लीजिए। But the Lord says, you go through the problem, I'll be with you. पर प्रभु कहते हैं कि समस्या से होकर जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Then you will be changed, your nature will be changed. तो फिर आप बदल जाएंगे और आपका जो व्यवहार है वो भी बदल जाएगा। Then you'll stop grumbling and complaining, you'll stop having anxiety, and you'll stop loving money and the things of this world. और आप फिर कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, इस संसार में से प्रेम रखना, पैसों से प्रेम रखना बंद कर देंगे। And then you'll stop becoming so proud and you'll become humble. और बहुत ज्यादा घमंडी होने की बजाय आप बहुत ही दीन हो जाएंगे। And then your riches and your position in God will increase. और परमेश्वर के जो आपके लिए जो मन की इच्छा है वो बढ़ती जाएगी। So even though we do not see God, we still believe Him and we have faith in Him that God is in control of my life. यद्यपि हम प्रभु को अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, पर हमारे अंदर पूरा विश्वास है। And as a result, what it says in verse 9, obtaining as the outcome of your soul, outcome of your faith, the salvation of your souls. और 9 वचन कहता है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते रहो। So when we go through all these trials, our souls, our lives are changed, our character is changed. और जब भी कभी हम इस परीक्षाओं में से होकर गुजरते हैं तो हमारा जीवन बदलता है, हमारा चरित्र बदलता है। So salvation is 3 parts. और उद्धार के 3 हिस्से होते हैं। One is the past tense. पहला जो होता है वो हमारा जो भूतकाल, that we have been saved from all the punishment of our past sins, and we have God has forgotten them completely and cleansed us completely, and we are made right as children of God. और प्रभु ने हमारे सारे पापों को हमारे पूरी तरीके से माफ कर दिया है, वो भूल भी गया है। अब हम प्रभु के पास हैं। This is the time that we take when we believe in the Lord and we are born again. और ये समय है जब हमें प्रभु पर भरोसा करते हैं और अब नया जन्म पाते हैं। But now we are living in this world. There are so many other areas in our life that have to change. पर अभी जो है बहुत सारे मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बदलना बाकी है। And that is why God sends so many trials in our life, so that we can have faith in Him and trust in Him and ask God for help, so that we will be saved, our souls will be saved from all sin. और अभी जो है प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारे परीक्षण, दुखों को, तकलीफों को भेजते हैं ताकि हम होकर गुजरें। We are all under so much of bondage to sin even now as believers. और sorry brother, we are under the control of sin and under the control of the flesh even as believers. और विश्वासी होने के बावजूद भी हम बहुत सारे पाप के बंधन में हैं, बहुत सारे पाप हमारे अंदर पाए जाते हैं। You know, and we know from our life there is so much of anxiety in our life. और हम जानते हैं कि कितनी सारी चिंताओं से घिरे रहते हैं कभी। So much of fear about certain things. किसी बात के लिए डर रहता है मन में। So much of hatred and irritation. और किसी के लिए नफरत या फिर चिड़चिड़ाहट। Many times not forgiving people. कई बार दूसरों को माफ नहीं कर पाते। We don't have love towards people, believers and unbelievers. कई बार लोगों के प्रति, विश्वासी हो या अविश्वासी, हमारे मन में प्रेम नहीं होता। We are so much attached to earthly things and money. और पैसों के प्रति और इस संसार की बातों के प्रति हम बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं। And so many other bad habits that we have. और बहुत सारी गंदे आदतें जो हमारे अंदर होती है। And the top of it, the worst thing is that we got so much of pride in us. और सबसे बेकार बात तो ये हो सकती है कि हमारे अंदर यदि घमंड हो। Now God wants to change us. पर प्रभु हमें बदलना चाहते हैं। So all this every day is given to you and me that we can be changed. और कुछ ना कुछ ऐसा प्रभु हमारे जीवन में देंगे ताकि हम बदलते जाएं। And that is the best thing, is that God gives us so many trials.
और ये सबसे अच्छी बात है, सबसे उत्तम बात है कि प्रभु हमें हमारे जीवन में परीक्षण देते हैं। And God has given us the word of God to remind us that God loves us and God will help us. और अच्छी बात तो ये है कि परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है ताकि हम उसको स्मरण रख सके, उसको याद रख सके, प्रभु हमारे साथ है, हमसे प्रेम रखता So है। we pray to God and ask God for help. ताकि हम प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर से मदद मांग सकें। And we praise God and worship God because God is helping us and going to help us. और हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमारी मदद करने जा रहे हैं। And we can thank God that God has given us meetings and brothers and sisters that we can hear the word of God. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं कि प्रभु ने हमें सभा दी है और भाई बहन दिए हैं। And with the result that our faith can increase. और ये होता है कि हमारा जो विश्वास है वो बढ़ जाता है। It says obtaining as a result of your faith the salvation of your souls. और अपने वर्ड 9 verse 9. और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं को उद्धार प्राप्त करते रहो। So we will be saved increasingly from all our bad habits and sins more and more as every day passes by. We will get better and better. और हर दिन एक बेहतर जीवन जीना है, हमारे जो पिछला जो बीत गया है उससे और बढ़कर हमें हमारे पापों को पीछे छोड़ देना है। And that is what the Lord desires, that we can become better and better, from glory to glory. We can become more like Jesus every day. और प्रभु यही चाहते हैं कि हम अंश अंश करके दिन पर दिन और बेहतर होते जाएं। प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। That is why we have difficulties like financial difficulties and people in the home, maybe our husband not understanding us, the children also not behaving properly. It is that God has done this work so that you can be changed. और इसलिए बहुत सारी मुसीबतें जैसे आर्थिक तंगी हो सकती है या फिर परिवार में दिक्कत आपके पति के द्वारा या फिर आपके बच्चों के द्वारा वो अच्छे से बर्ताव नहीं करते, तो ये सब आपको बदलने के लिए है। And if you are working troubles in your workplace, और आपके काम की जगह पर आपके दफ्तर में आपको कुछ मुसीबत आ रही है, all these things God arranges so that you can become more like Jesus and get that internal inheritance and can become richer and can be preserved. और ये सब आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, वो मिरास पाने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी। So you can grow spiritually and become very precious in the eyes of God. और इसलिए होता है कि ताकि हम परमेश्वर की आंखों में और बहुमूल्य हो जाए। So we have to obey the Lord whenever the Holy Spirit speaks to us about different bad things in our life, and then the Holy Spirit will help us to be overcomers. और इसलिए हमें प्रभु की आज्ञा को मानना है जब भी कभी हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, और हमें एक जय पाने वाला जीवन जीना है। But if we don't ask God, then God will not help us, and we will still remain in our sins. और ये हम मानते नहीं है तो हम हमारे पापों में ही रह जाएंगे। So we have so many temptations and desires in our body. और हमारे शरीर में बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, इच्छाएं होती है। Verse 14 it says in chapter 1 Peter chapter 1. पहला पत्रस पहला अध्याय 14 and 15. 14 वचन 14 और 15। It says, as obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in ignorance, but be like the Holy One who has called you. Be holy in all your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am holy. और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। So God wants you and me to be holy. प्रभु चाहता है कि मैं और आप पवित्र बन जाएं। Holy means to be separate for God only. और पवित्र होने का मतलब है सिर्फ प्रभु के लिए अलग किया जाना। We have not to live for ourselves, not to live for the world, not to live for our relatives. मतलब हम हमारे लिए नहीं जी सकते, संसार के लिए नहीं, रिश्तेदारों के लिए भी नहीं, but for Jesus who died for us and gave his life for us to give us an eternal inheritance. केवल यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए मरे हैं, हमारे लिए जी उठे और हमारे लिए अनंत मिरास को रखा हुआ है। We have to live a very short time in this world. बहुत ही थोड़े समय के लिए संसार में रहना है। But that decides what will happen for all eternity. पर यही तय करेगा कि हमें अनंत में क्या मिलने वाला है। Suppose a human being has to live for about 80 years in this world. मान लीजिए कि कोई मनुष्य 80 वर्ष के लिए जीता है संसार में। But now after that a person has to live for more than 800 crore years. Sorry brother? After that he has to live for more than 800 crore years. पर उसके बाद तो 8000 करोड़ सालों तक हमें वहां पर रहना है। Either in heaven or in hell.
या तो वो स्वर्ग हो सकता है या फिर नर्क। But we have to live very well so that as we grow closer to God, God can be very happy with us. पर हमें बहुत ही उत्तम जीवन जीना है ताकि हम प्रभु के करीब आ जाएं, ताकि हम प्रभु हमसे खुश रहें। That is why, and this time on this earth is a time of preparation. और ये जो संसार में जो हमें समय मिला है वो हमें तैयारी के लिए मिला है। Just in school, people go to school and college, and they work hard, they do well, and they get good marks, and they get a good job. और जैसे विद्यार्थी होते हैं स्कूल या कॉलेज के, वो बहुत ही ज्यादा तैयारी करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद उन्हें अच्छा रिजल्ट मिलता है। So God also wants us to do well, so that when we reach heaven, we will not be ashamed, and we will not be discouraged, and we will take every trial and problem and humble ourselves. और इसलिए ये समय तैयारी का है कि जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो हमें शर्म करने के लिए कोई वजह नहीं रहेगी और हम परमेश्वर को खुश कर पाएंगे। Verse 14 says we should be obedient children. और 14 वचन कहता है कि हमें आज्ञाकारी बालक बनना है। There are so many disobedient children of God also, बहुत सारे अनाज्ञाकारी बच्चे भी हैं प्रभु के, because they do what they like and they don't want to please God. क्योंकि वे वही करते हैं जो चाहते हैं, वो परमेश्वर को खुश करना नहीं चाहते। So we must try our level best to be obedient. पर हमें अपनी बिल्कुल हद तक कोशिश करनी है, मुमकिन कोशिश करनी है कि हम प्रभु को खुश कर सकें। And the wonderful is that God has given us the Holy Spirit because Jesus Christ died for us and was rose again. और अच्छी बात, बहुत ही अद्भुत बात यह है कि हमें पवित्र आत्मा मिला है, क्योंकि प्रभु जो है मृतकों में से जी उठे हैं हमारे लिए। In the old covenant, they could not obey God because the Holy Spirit was not given to them. पुराने नियम में जो था वो विश्वास नहीं कर पाते थे क्योंकि पवित्र आत्मा उनके पास नहीं था। And verse 15 says we must be holy in all our behavior. पर 15 वचन कहता है कि हमें हमारे चाल चलन में पवित्र होना है। all our behavior. हर एक चाल चलन में पवित्र होना है। Behavior in the home, our personal habits, behavior in the office, behavior in the church, everywhere. हमारा व्यवहार जहाँ कहीं भी हो, हमारे घर में, हमारे दफ्तर में, हमारे आसपास में, हमारे दोस्तों में, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। We have to be holy. हमें पवित्र होना है हर जगह। Holy as Jesus was holy. क्योंकि हमें पवित्र होना है जैसा यीशु मसीह पवित्र है। And that is what God expects you and me because He has given us the Holy Spirit. और यही जो है प्रभु चाहता है हमसे, क्योंकि उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। Not only that, God is going to judge you and me. और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु हमारा न्याय भी करने वाले हैं। Verse 17 said, if you address the Father as the one who impartially judges according to each man's work, conduct yourselves in fear during the time of your stay upon earth. और 17 वचन कहता है, और जबकि तुम है पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने के समय भय न बिताओ। So God is watching you and me every day. प्रभु मुझे और आपको देख रहे हैं हर एक दिन। And when He judges us, He doesn't show any partiality. और जब वो हमारा न्याय करेंगे तो कोई पक्षपात नहीं होगा। And He will judge us according to how we have behaved. और वो हमें ऐसा ही न्याय करेंगे जिस तरीके से हमने व्यवहार किया है। So it says that you and I should have the fear of God in our own life when we live in this earth. और हमें इसलिए परमेश्वर का भय रखते हुए अपने जीवन, इस संसार में जीवन बिताना है। And it says the fear of God is the beginning of wisdom. और वचन कहता है कि the fear of God, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। So God wants us to be wise people like Jesus. परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान हो यीशु मसीह के समान। Because the Lord has done so much for us, we must live in gratitude towards God. और क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हम हमेशा धन्यवाद मन से रहें प्रभु के साथ। That is why we will be changed every day as we look to God and we obey the Lord. Our lives and our character will be changed. और इसलिए हमें प्रतिदिन बदलना है, हमारा जीवन, हमारा चरित्र बदलना चाहिए हर एक दिन। And one day the final salvation is when we leave this earth, all our body will go and we will get a body that will not have any pain and will not be tempted at all. और एक दिन ऐसा होगा कि हमें शरीर को छोड़कर जाना है प्रभु के पास, फिर कोई दर्द नहीं होगा, फिर कोई प्रलोभन नहीं होगा इस शरीर में। We will be with the Lord and we will enjoy all eternity with Him. फिर हम प्रभु के साथ होंगे और अनंत जीवन का आनंद मना रहे होंगे।
So my dear brothers, sisters, we must always rejoice in God for what God has done for us. और इसलिए प्रिय बहनों, हमेशा आनंदित रहना है परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए किया है उसके लिए। And even if we fail, ask God for help. और यदि हम हार भी जाएं या गिर जाएं तो प्रभु से मदद मांगे, He is very happy to help us. तो वो बहुत ही खुश रहता है हमें मदद करने के लिए। Even if we fail 1,000 times, the Lord will still help us. यदि हम 1000 बार भी हार गए हों तो कोई बात नहीं, हमें प्रभु मदद करेंगे। Ask God forgiveness, ask people forgiveness, and humble ourselves. प्रभु से माफी मांगिए, लोगों से माफी मांगिए और अपने आप को नम्र बनाइए। And then we will live like heavenly people, full of joy and peace and love in our hearts. और फिर हम एक स्वर्गीय जीवन यहाँ पर जी सकते हैं, हमारे अंदर प्रेम, आनंद और शांति होंगे। This is the best life for you to live, sisters. Wherever you are, whatever your situation, God will really be very close to you, and you will be having the tremendous love of God and the joy of God in your own life. और ये बहुत ही उत्तम जीवन है जीने के लिए, जहाँ कहीं भी आप हैं, परमेश्वर के आनंद का आप भरपूर आनंद ले सकते हैं। And you will be very close to God, sons and daughters of the living God. और बहुत प्रभु के बहुत ही करीब होंगे, आप परमेश्वर की बेटियां होंगे। So what a wonderful privilege. और ये बहुत ही कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। Amen. So now we have an opportunity for sisters also. You can share about your spiritual blessings which God has given you and how God is working in your life and teaching you through all your problems. आपको भी सिखा रहा है, इतना सारा गलतियों से भी हम गिरते हैं, प्रभु हमको कैसे उठाता है, कितना प्रेम दिखाता है, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु की बेटियां हैं। प्रभु हमको बहुत ही प्रोत्साहन देते हैं और आज भी प्रोत्साहन देते हैं और प्रोत्साहन जरूर देंगे। हमारे गलतियों को नहीं देखते हैं, हमको उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आइए सिस्टर्स, एक एक करके प्रभु की महिमा के लिए आपका एक गवाही दे दीजिए कि प्रभु आपसे कितना प्रेम करते हैं और रोज आपके जीवन में आपकी भलाई कैसे कर रहे हैं। तो एनीबॉडी कैन शेयर, जल्दी जल्दी शेयर कर लीजिए और एक दूसरे को भी प्रोत्साहन कर लीजिए। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। जैसे ब्रदर ने कहा कि हमें अलग किया हुआ है और हमें पवित्र रहना है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। और आज जब मैं उत्पत्ति की वचनों में देख रही थी, 50 अध्याय में यूसुफ के जीवन में वचन 19, 18 और 19 में जब याकूब की मृत्यु हो गई, उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो वो सब भाई डर गए कि हमने इसके साथ बुरा किया है तो अभी ये हमारा बदला लेगा। तो वो डर गए थे और उसके सामने गए, यूसुफ के सामने, और कहने लगे कि देख हम तेरे दास हैं, हमें माफ करना। रो पड़े वो, तो गिड़गिड़ाने लगे। तब यूसुफ भी रोया और उसने कहा 19वें वचन में, यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इस वचन से मुझे आशीष प्राप्त हुआ। उस वक्त यूसुफ के पास नया नियम नहीं था। आज हम जानते हैं कि रोमियो की पत्री जो है 8:28 में सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। ये बातें यूसुफ जानता था और उसके जीवन से हम सीखते हैं। इस बात से मुझे प्रोत्साहन मिला कि यदि भले उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा किया, लेकिन जब वक्त आया तब उसने वो बदले का विचार नहीं किया, बल्कि सारी महिमा परमेश्वर को दी और उन भाइयों का भी भला किया। और आज परमेश्वर के बच्चे होते हुए, आज मैं परमेश्वर की बच्ची होती है, और हम सब बहनों के लिए भी मैं ये प्रोत्साहन देना चाहती हूँ कि हाँ, जैसे अभी ब्रदर ने कहा कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, जितना परमेश्वर के निकट हम चलते हैं तो हमें परीक्षाएं प्रलोभने आती है, परीक्षाएं आती है, लेकिन उस समय सामने वाले हमसे कैसे बर्ताव करते हैं वो हमें नहीं देखना है। तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमें कैसा उसका प्रतिसाद देना है, हमें कैसा बर्ताव करना है, ये हम सीखते हैं। और यूसुफ के जीवन से ये आज सीखने को मिला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज अगर मैं बहन हूँ तो मुझे देखना है कि मेरा भाई भले बुरा है लेकिन मुझे उससे प्यार करना है। मैं माँ हूँ तो बच्चे भले गलत रास्ते में जा रहे हैं तो उनसे प्यार करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। वैसे ही अगर कोई सास है तो उसे अच्छी सास खुद बनना है, भले बहू ठीक से बर्ताव ना करे, या बहू है तो बहू को भी अच्छा बर्ताव करना है, भले सास ससुर कैसे भी हो। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। और जब हम इस मामले में हम परमेश्वर के पास जाते और कहते कि हम आपके बच्चे हैं, हमें सहायता करना, आपकी कृपा देना, तो सही में
जो शांति परमेश्वर देता है, जो आनंद परमेश्वर देता है, उसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। ये जो हमारे जीवन में परीक्षा आती है, उससे परमेश्वर सिर्फ हमारा भला नहीं करता, तो औरों का भी भला करता है। वो हमें आशीषित करता है और हमारे द्वारा औरों को भी आशीषित करता है। जैसे अब्राहम को कहा है और याकूब को कहा गया है, वही आशीष हमारे ऊपर भी है कि हमारे द्वारा सारे लोग आशीषित होंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। ये बड़ी सिस्टर्स अपना व्यक्तिगत जीवन। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे साथ एक जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, एक ऐसा परिस्थिति हुआ जिससे मुझे लगा भी मेरा जॉब धोखे में है। तो लेकिन मुझे परमेश्वर ने एक वचन के द्वारा बात की, नीति वचन 2 उसमें 7 उसमें लिखा है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। तो इस वचन ने मुझे प्रोत्साहन दिया कि नहीं, प्रभु मेरी सहायता मदद करेंगे, और मुझे बचाया प्रभु ने वहां पे। इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, थैंक यू। आपके दिल में कुछ है वो शेयर कर लीजिए। क्षमा नहीं, प्रभु हमको पवित्र आत्मा दिया है, कुछ वचन दिया है, कुछ एनकरेजमेंट दिया। वचन भी नहीं है तो ठीक है, ऐसे ही बोल दो, प्रभु का धन्यवाद करते रहे। एनीबॉडी कैन शेयर। I am praising the Lord for reminding me again that my God, my Father in heaven is holy. So I also will be. I was thinking during the last couple of weeks, I turned 50-year-old and I don't have so much time. I have to value each day and live for the Lord. I know that the Lord only put that desire in my heart and help me. And again today, many things Lord reminded me while listening. Brother was speaking. It is not for pleasing others, or not for others, or not for even more myself, but for the one who died for me and give me eternal life, for whom I have to live. I'm praising the Lord, and I believe Lord will help me. Thank you all, dear sisters, even though I don't know many of you. Thank you. And Yes, praise the Lord. Are you sister from Pune? yes, Sister yes, Vinci? brother, yes, brother. Yeah, okay, thank you. Any other sisters? There are 2-3 sisters can share also. Sister Rekha, Sangeeta, प्रभु का धन्यवाद कर लीजिए। कोई है? सोनाली सिस्टर्स पहला, कुछ भी है, प्रभु का धन्यवाद करते ना। विजया। मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु मुझे सहायता कर रहे और दिन बाइबल रीड करने को। तो अलग अलग वे में प्रभु में से बात कर रहे कि मुझे क्या चेंज करना चाहिए, और एवरी टाइम पॉजिटिव सोचना है। और प्रभु का वचन पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे से बात कर रहे करके। और ये चैप्टर कर रही थी मैं, और उसमें 11 वर्स 24 में जो प्रभु ने कहा है
when you pray and ask for something, believe that you have received it and you will Yeah, be amen. given सिस्टर प्लीज whatever थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा जोर से कहेंगे। ओके 11 वर्स 24 में जो प्रभु ने कहा है, when you pray and ask for something, believe that you have received it and you will be given whatever you ask for. तो Amen. इससे मुझे ज्यादा encouragement मिला है। मीन्स प्रभु मेरे से बात कर रहे हैं, सिचुएशन में मैं जो भी सोच रही हूँ उसमें प्रभु मेरे से ऐसा बात करके मुझे encouragement कर रहे हैं हर सिचुएशन में करके मैं सोच रही हूँ। तो ओल्ड टेस्टमेंट भी पढ़ने को मुझे सहायता कर रहे हैं प्रभु। और मैं ब्रदर जैक का भी मैसेज सुनती हूँ डेली। तो उसमें एक बार वो ब्रदर जैक एक्सप्लेन कर रहे थे, हम ओल्ड टेस्टमेंट में 3 चैप्टर्स पढ़ने का 3 चैप्टर्स पढ़ने का और न्यू टेस्टमेंट में 1 चैप्टर, ऐसा डेली कोई शेड्यूल रखो। ओल्ड टेस्टमेंट थोड़ा ऊपर ऊपर से जाता है लेकिन फिर भी पढ़ो, प्रभु आपसे आप बात करेंगे क्या है क्या नहीं। और न्यू टेस्टमेंट में भी जैसे पढ़ते जाओगे वैसा समझ में आएगा और पढ़ने को मन लगेगा। तो ये मैसेज मुझे ज्यादा एनकरेजमेंट मिला था। तो ऐसा प्रभु मुझे इम्प्रूव कर रहे, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। आमीन। सिस्टर मैं अभी बताना चाहती हूँ कि आपने जैसे कहा कि बाइबल, जैसे ब्रदर ने बताया कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट का, और इसके साथ ही अगर ब्रदर का जो थ्रू द बाइबल का है हिंदी का, वो भी उसके साथ पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। पढ़ भी सकते हैं और उसके ऑडियो भी है हर एक बुक का, तो वो भी अगर सुनेंगे, पढ़ेंगे या तो सुनेंगे तो वो एक अच्छा रहेगा। ओके सिस्टर, एक्चुअली मैं सुनती हूँ डेली थोड़ा। थैंक यू। और कोई सिस्टर्स भी है? और एक सिस्टर भी शेयर कर सकते हैं। सबको धन्यवाद करना कि आप प्रभु हमारा जीवन में और क्या काम कर रहेंगे। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और आज के वचन से मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिला है। जैसे कि ब्रदर ने बताया कि जैसे कि हम यहाँ पर एक परदेसी हैं, मतलब हम इस संसार में सिर्फ थोड़े समय के लिए हैं। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे पाप को जो मेरे अंदर है मुझे बताते हैं। और क्योंकि कभी कभी मुझे किसी किसी बातों का बुरा लग जाता है, तो मुझे फील हो रहा है कि मुझे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई हमेशा के लिए नहीं हूँ। क्योंकि ये मुझे नहीं बुरा लगता है, एक्चुअली मेरे जो अंदर का जो घमंड है वो जो है वो बुरा, उसको बुरा लगता है, उसको हर्ट होता है। तो वो मुझे परमेश्वर ने दिखाया है। और वचन ये कहता है कि जो कोई अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। तो परमेश्वर की दया मुझे चाहिए और इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए कि मैं इन सब बातों को छोड़ूं मेरे जीवन में। और परमेश्वर का भय मेरे अंदर आए, क्योंकि यहाँ पे वचन जो था मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। तो अपने परदेसी होने के समय भय से बिताओ, मतलब जो अभी हम जी रहे हैं उसको हमें भय से जीना है। और परमेश्वर का भय मेरे अंदर आए ताकि मैं परमेश्वर के लिए एक अच्छा जीवन जी सकूं जैसा परमेश्वर को भाता है। क्योंकि मैं भी कभी कभी ट्रायल्स आते हैं मेरे जीवन में, तो मैं कहती हूँ कि प्रभु ये क्यों आए, ये इसको हटा दीजिए। मैं ट्रायल को हटाने की, मतलब जो दुख मुसीबत से होकर जाती हूँ तो उससे मैं दूर पीछे भागने की कोशिश करती हूँ। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अब मुझे प्रभु ने अक्लें दी और परमेश्वर ने बुद्धि दी इस बात के लिए। मुझे प्रकट किया कि मुझे इस बात में नहीं प्रार्थना करनी, मुझे ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु इस परीक्षण में भी मैं तेरा धन्यवाद कर सकूं और प्रभु तेरी बड़ाई कर सकूं। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे हमेशा एनकरेज करते हैं। प्रभु, sorry brother, I want to sing one hymn. May I? Yeah. I mean, only 1 or 2 verses. दो बाकी बस। Okay. ज्यादा टाइम मिल गया। हाँ। Okay. यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सूना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सूना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी।
दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी हो यीशु। चालू रखो सिस्टर, 1 मिनट के लिए कट हो गया। Can you hear me, brother? Yeah. Tell me, share, sing. Okay. Suddenly it got short. Okay. तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझ में है जीवन की हर खुशी, अब मैं ना जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन। आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स, आज इस समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। तो हम लोग रोज मुसीबतों में जाएंगे, कलीसिया में परेशानी से जाएंगे, तभी तो हम पहले तो कलीसिया तकलीफ में जाएंगे तो पहले प्रभु के ऊपर नजर रखना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज लुक टू द लॉर्ड एंड हमारा जबान पहले तो चुप बैठना चाहिए और प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। समय ये मेरे जीवन में आप जो काम करना है वो कर लीजिए और मुझे दिखा दीजिए, और चुप बैठ के बैठना चाहिए। प्रभु आपको सिखा देंगे और प्रभु आपका जीवन में एक अच्छा काम करेंगे और आपका जीवन, आपका आनंद, आप शांति और प्रेम बढ़ते बढ़ते जाएंगे। तो रोज प्रभु कई नाना प्रकार के तकलीफ लेके आएंगे, क्योंकि प्रभु अलाउ करता है। जैसे जो याकूब के जीवन, याकूब ने, जो अयूब के जीवन में कितना सारा बताया, लेकिन उसके अंत में क्या हुआ? अच्छा अंत हुआ। लेकिन बाकी लोगों को उनका निंदा किया, तो हम तो क्या कुरकुराना नहीं, प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु हमारा स्पेशल ट्रायल्स भेजते हैं, आपके लिए स्पेशल ट्रायल्स ले, मेरे लिए, हर सिस्टर के लिए। प्रभु जानता है हमारा कमजोरी कहाँ है, हम कमजोरी ठीक करने के लिए प्रभु ये जीवन हमको सुधारने के लिए उसकी दया से और प्रेम से हमको ये तकलीफें और मुसीबतें भेजते हैं, ताकि हम प्रभु के और करीब आए। तो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स, इस मीटिंग के लिए कल सब प्रार्थना का मीटिंग है 8:45 PM। सबके लिए प्रार्थना में रहना और धन्यवाद करके वचन के ऊपर मनन करना। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।